Hello students, welcome back to our social science class. As we discuss our civics chapter 2 constitution design. Okay, today we will do further study of constitution design. First recall our first part. We already discussed about the Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first president of South Africa after independence, and he was the person who raised first time their voice against the apartheid. What is the meaning of apartheid? Apartheid means racial discrimination. We already studied about that whites did lots of misbehave with the black persons. They have 3/4 population in the South Africa, but they were ill-treated by the whites. We already discussed blacks have separate schools, separate beaches, separate hospital and churches. And today we will discuss about that, how the South Africa get freedom from the apartheid policy. Okay, we already discussed about the meaning of apartheid and how the whites behave with the South African native persons, okay, black and colored. Towards a new constitution. Here today we will discuss about that the new constitution. But in this video we will read about that how the new constitution formed in South Africa after the independence, what process followed, how they get freedom. First is struggle and protest made by the white regime अनस्टेबल. ओके, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहां पर क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया गया था साउथ अफ्रीका में. पर्पस क्या था कि to do struggle against the apartheid policy. This is the first party which formed in the South Africa, and all the person with the help of this party, most of persons are aware regarding the how the white person behave with them. Okay, now they want equality, now they want liberty and fraternity. नेक्स्ट इज स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट मेड द व्हाइट रिजाइम अनस्टेबल. जो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पॉलिसी के थ्रू, उन्होंने इस क्या कर दिया था, पीपल्स ने, अफ्रीकन पीपल्स ने, जो व्हाइट रिजाइम था, जो व्हाइट सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो अब अनस्टेबल हो गया था. नाउ दे आर अनसिक्योर, दे फील लाइक दे नो लॉन्गर कैन डू rule the South Africa. They have to do compromise with the South African people. Now they realized, अब उनको realize हो गया था कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, they have to do compromise with the South African person. Otherwise they have to left the South African country because of the struggle and protest of the अफ्रीकन पीपल. बिकॉज प्रीवियस में क्या था कि ना तो ये कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे साउथ अफ्रीकन, इस तरह की पॉलिसी थी, और ना ही इनको प्रोटेस्ट करने का राइट था. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी चेंज्ड, नाउ लॉ रिप्लेस, रिस्ट्रिक्शन और मीडिया लिफ्टेड. यहां पर क्या है, जो पॉलिसी थी, पॉलिसी क्या थी, वहां पर अपार्थाइड पॉलिसी थी, वो क्या हो गई थी, अब चेंज हो गई थी. पहले क्या था कि आप जहां पर व्हाइट पर्सन जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहां पर क्या थे, ब्लैक पर्सन्स को अलाउड नहीं था जॉब करना. अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहे थे. नाउ दे आर चेंजिंग बिकॉज दे फील दे आर अनस्टेबल नाउ इन साउथ अफ्रीका. जो ये पॉलिसी थी, अब क्या आ गया था, अब यहाँ पर इक्वालिटी की बात आ गई थी. जो ये पॉलिसी थी अपार्थाइड की, वो अब चेंज करना स्टार्ट कर दिया था. लॉ रिप्लेस्ड, लॉ रिप्लेस्ड क्या थे कि जो राइट्स मिले हुए थे व्हाइट पर्सन्स को बिकॉज ऑफ देयर कलर कॉम्प्लेक्शन, अब और जो ब्लैक को उसमें रखा जाता था इंफीरियर में, अब वो जो लॉ थे वो क्या होने स्टार्ट हो गए थे, रिप्लेस होना स्टार्ट हो गए थे. आप जॉब में इक्वली आप
अप्लाई कर सकते हो, सेम स्कूल में आप स्टडी कर सकते हो, चर्चेस में मूव कर सकते हो. दिस टाइप ऑफ लॉ नाउ स्टार्ट चेंजिंग. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया लिफ्टेड. वाइट्स पर्सन ने जो मीडिया का को कंप्रेस कर रखा था. रीजन क्या था कि वो व्हाइट्स के अगेंस्ट कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं करेंगे. अब जो मीडिया है वो फ्री फ्रॉम द व्हाइट्स थी. नाउ दे हैव राइट टू पब्लिश एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग व्हाइट्स. they news are if they are against or in the favor of whites. Okay, this type of changes now start in South Africa. First is policy change. Which policy changed? Apartheid policy. Now whites start doing equal behavior with the blacks and colored. Law replaced means that type of law formed by which gives superiority to the whites. Now they become change, replace. रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया. मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन था वो भी अपलिफ्ट कर दिया गया था. जो कंट्रोल था वो अब लिमिटेड है. नेक्स्ट इज मंडेला फ्रीड फ्रॉम प्रिजन. हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में. नेल्सन मंडेला वाज एंड 7 पर्सन्स प्रिजन 28 years बिकॉज दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द अपार्थेड. अब ये स्ट्रगल की ही बात थी कि जो व्हाइट्स जो पर्सन थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था, नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया था. अदरवाइज दे नेल्सन मंडेला हैव द लाइफ इम्प्रिजनमेंट punishment. But because of the black struggle and protest, they have to free Mandela from the prison. Okay, next is new flag of South Africa unfurled, apartheid ended. अब यहां पर क्या है कि 26 अप्रैल 1994 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था? What happened? That South Africa become republic. Now South Africa is free from the whites. When South Africa get freedom from the whites, they get freedom from the whites on 26 अप्रैल 1994. और न्यू फ्लैग, जो न्यू फ्लैग है साउथ अफ्रीका का, जो फ्रीडम और लिबर्टी इक्वालिटी को शो कर रहा था, वो फ्लैग क्या किया गया था? अनफोल्ड किया गया था. अपार्थेड एंडेड. जो किस बात का सिंबल था? दिस फ्लैग वाज सिंबल ऑफ दैट अपार्थेड इज एंडेड इन साउथ अफ्रीका. नाउ वी आर इक्वल. Okay, when they get freedom from the whites, 26th April 1994, and at the midnight of 26th April 1994, new flags of South Africa unfold. Okay, and which was the symbol of that? Now they are free from the apartheid policy. Next is blacks appeal to their followers to forgive whites. नेल्सन मंडेला की थिंकिंग यही थी कि अगर हमें गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से रन करना है तो हमें क्या करना चाहिए. जो वो अपने जो ब्लैक्स थे, जो अफ्रीकन नेटिव थे, उनको क्या एड्रेस कर रहे थे कि व्हाइट्स ने जो भी मिसबिहेव आपके साथ किया है, जिस तरह का भी बिहेव आपके साथ किया है, आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको फॉरगिव कर देना चाहिए. ओके, और जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने क्या एक डिमांड रखी थी कि जो हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए. विच गवर्नमेंट ही डिमांडेड नेल्सन मंडेला? मल्टी नेशनल, मल्टी रेशियल. गवर्नमेंट शुड बी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. ओके, this was the appeal doing by the Nelson Mandela to the blacks. Okay, first he appealed that we have to forgive whites for their behavior. Next is multiracial government should be in the South Africa. There should be participation of each racial, whether it is white, black or colored. Colored means mix.
प्लेस टू बिल्ड अ न्यू अफ्रीका बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और इन्होंने क्या प्लेस ली कि हमारा जो अब साउथ अफ्रीका होगा वो किस वैल्यू पर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है कि आप सबके साथ इक्वली बिहेव कर रहे हो, आप फ्री हो किसी भी जॉब को करने के लिए, आप एजुकेशन गेन करने के लिए आप फ्री हो, आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो आपको इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का और लिबर्टी का की फीलिंग दिलाए, वैसी वैल्यू को हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। हमें खुद सिटीजन होकर साउथ अफ्रीका के एक दूसरे के साथ अब कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए कि जैसे हम ब्लैक हैं तो अब हम व्हाइट्स के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दें। जैसे व्हाइट्स ने ब्लैक के साथ और कलर्स के साथ मिसबिहेव किया है, वैसे ही हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, हमें उनके साथ इक्वालिटी का बिहेव करना है। ये प्लेस ली थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। बात यही है कि अब हमें उनके साथ कैसे रहना है, एक कॉम्प्रोमाइज वाली जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, वो होना चाहिए। हम एक दूसरे की रिलीजियस रिस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे के थॉट्स की रिस्पेक्ट करें। बोथ ब्लैक एंड व्हाइट वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था, इसमें सभी का पार्टिसिपेशन था, वेदर दे आर ब्लैक और वेदर दे आर व्हाइट्स। All person participate to formed a new constitution for the South Africa for the better democratic government in South Africa to build a better society. Next is South Africa become a model of democracy. Okay, अब यहाँ पर important point क्या है कि जो डेमोक्रेसी का जो पॉइंट है वो ना केवल साउथ अफ्रीका में, मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थी उनमें क्या था कि सभी को, आपने प्रीवियस जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इन दैट चैप्टर यू हैव अ क्वेश्चन दैट विच गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट टू रन अ कंट्री। द आंसर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। दैट्स वाई साउथ अफ्रीका बिकम मॉडल, बिकॉज साउथ अफ्रीका में क्या था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबके लिए क्या बन रहा था, एक एग्जाम्पल बन रहा था। ओके, दैट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एवरी एस्पेक्ट, नॉट दैट यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, on the basis of that you are whether outsider, you should be treated equally. This is the main motto of the South Africa. I hope you get all the important points that today we will discuss about that towards a new constitution. In this part we discuss about that how the constitution formed in South Africa. How the constitution formed in South Africa, what process South African peoples follow. फर्स्ट इज स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट मेड द व्हाइट रिजाइम अनस्टेबल, बिकॉज यहाँ पर क्या था, जो व्हाइट्स की थी उनका रूल था कि आप ना तो कोई एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो, ना ही कोई प्रोटेस्ट कर सकते हो व्हाइट्स के अगेंस्ट। लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए। और इसे स्ट्रगल और प्रोटेस्ट के रिजल्ट था कि इनको जो व्हाइट्स थे उनको अपनी जो गवर्नमेंट है वो अब अनस्टेबल लगना फील हो गया था, और इनको फील हो गया था अगर हमें यहाँ पर रहना है, इफ वी हैव टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द ब्लैक, अदरवाइज दे हैव टू लीव द कंट्री। पॉलिसी चेंज हो गई थी, अपार्थाइड की जगह अब इक्वेलिटी पे बात आ गई थी, लॉ रिप्लेस कर दिए गए थे, अब जो स्कूल्स थे सेपरेट थे वो कॉमन हो गए थे, कॉमन चर्चेस, कॉमन बसेस, कॉमन एरिया, और जो मीडिया पे कंट्रोल था व्हाइट्स का वो भी क्या कर दिया था, अब फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ व्हाइट्स। नाउ दे हैव राइट टू पब्लिश देयर न्यूज। नेक्स्ट इज मंडेला जी, जो नेल्सन मंडेला थे, इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। प्रोटेस्ट और ये स्ट्रगल्स के ही बेसिस पर उनको क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था, जो बाद में क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीकन पीपल गेट फ्रीडम एंड द कंट्री बिकम रिपब्लिक फ्रॉम द व्हाइट्स, एंड at the midnight of 26 April 1994, new flag was unfurled by the South African people and Nelson Mandela
Nelson Mandela request and appealed to the blacks that we have to forgive white persons if we want democratic government. Okay, we have to forgive whites and pledge to build. Or next, they appeal to the black that we have to place for the democratic values. A country that have democratic value we should build in the South Africa. Okay, there will be no control of a single hand. There will be control on the common citizen. Both black and white work together. Now their rule changed that first क्या था कि आप जो सुपीरियर जॉब्स थी वो whites की थी, अब आप टुगेदर कर सकते हो वर्क को, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, कॉमन प्लेस कॉमन एरिया. नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका बिकम अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. एंड साउथ अफ्रीका क्या था, अब डेमोक्रेटिक के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल बन गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए. आई होप यू गेट ऑल द मीनिंग दैट. एंड द नेल्सन मंडेला preferred that multiracial government. This is all about the towards a new constitution. Thank you and have a nice day. Take care. Bye bye.